بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سلام صبح کے ساتھ میں ہوں عبد المن فریدی اور میرے ساتھ موجود ہے مقبول الہی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیا ٹی وی ایچ ڈی روزانہ صبح کے سلام کے لیے اپنے حاضرین اور ناظرین کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی ہے، اور اس صبح کے سلام میں ہم اللہ پاک کے نام سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد اپنا پروگرام آگے چلاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آیت مبارکہ قرآن مجید کی سورت نساء کی آیت نمبر 18، جس کا ترجمہ اے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ بھی چھین لے تو روز قیامت اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ محترم سامعین، زندگی یوں ہی نہیں گزر رہی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی چاہیے، زندگی کو آسان کرنا چاہیے۔ غلطی، زیادتی، ناانصافی، جرم، گناہ انسانوں سے ہی سرزد ہوتے ہیں، کبھی انہیں بدلے کی سزا میں نہ دی جائے اور کبھی انہیں بھلا کر معاف بھی کر دیا جاتا ہے، یہ سب نہ ہو تو زندگی بہت بھیانک اور شفاف ہو جائے۔ لوگوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا چاہیے تاکہ دلوں سے نفرتیں ختم ہو کر اور دوریاں ختم ہو کر ایک بہترین معاشرہ حقوق پذیر ہو سکے۔ تو ملک صاحب، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبد المن فریدی صاحب۔ اس پہ میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک نئی روشن صبح سے ہمیں نوازا اور اپنے کام کاج اور زندگی کی جو معمولات ہیں اس میں پھر سے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی جہاں جہاں موجود ہے خیر و برکت سے نوازے۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کا آپ نے ترجمہ پیش فرمایا اور احادیث مقدس جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں دونوں احادیث اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں بڑا ہی واضح انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغام دیا، بڑا ہی واضح پیغام دیا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک موت کے آثار شروع نہیں ہو جاتے۔ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے آخری وقت تک جو ہے انتظار کر رہا ہے، جس طرح سورہ میں فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے انتظار میں ہے، اور یہ انتظار کب تک ہے؟ جب تک اس پر سکرات کا عمل شروع نہیں ہو جاتا، جب تک اس پر موت کے آثار شروع نہیں ہو جاتے، کیونکہ موت وہ واحد سفر ہے جس کے بعد پھر زندگی کا دور جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ زندگی کے دور کٹنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے انتظار میں ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے حدیث پاک کی روشنی میں فرمائی کہ جس نے ناحق کسی کی زمین ہتھیا لی، گویا کہ اس نے پھر 7 توق جو ہے زمین اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اب ان دونوں چیزوں کی روشنی میں اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں، اپنی حالات کا جائزہ لے لیں، اپنی صورتحال کو ہم دیکھ لیں تو آج ہم کہاں اور کس حال میں کھڑے ہیں۔ آج ہم یہاں اور اس حال میں موجود ہیں کہ لوگوں کی حق تلفی کرنے میں ہم ذرہ برابر تعامل نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق کھانے میں ہم ذرہ برابر نہیں دیتے، لوگوں کی جو رائٹس ہے، لوگوں کو جو
मेरिट्स है उसको तलब करने में हम एक लम्हे का भी ताखीर नहीं करते। ये नहीं सोचते कि ये हक मेरा नहीं था, ये तो हक मेरे भाई का था, मेरे शहरदार का था। हम उसके हक को सलब करने के लिए जुड़े बैठे इंतजार में है कि कब उसने पलक आंख झपकी और हमने हमला कर दिया। अब ये जमीन का जो मामला आपने फरमाया हदीस पाक की रोशनी में, हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इर्द गिर्द देख लें कि जमीनों पर लोग जो है किस तरह कब्जा कर रहे हैं। जैसे सामान 100 बरस का, जी हकीकत में पल की खबर नहीं। बिल्कुल है। अभी मरे, एक लम्हा पहले वो साहब थे, जवान थे, सेहतमंद थे, अभी एक लम्हे पता चला कि जनाब उनको तो हार्ट अटैक हो गया, उनको तो एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, उनको फला मसला बन गया और वो इंतकाल कर गए। अब बात हो रही है कि जी अब उनकी नमाज जनाजा कब होगी। हर कोई ये पूछ रहा है कि नमाज जनाजा कब होगी। उधर नमाज जनाजा हुई और उधर जो है बस कहानी लिपट दी गई। तो अब्दुल फरीदी साहब, ये जमीनों पर जो कब्जे की बात फरमाई गई है, ये हमारे रोजमर्रा के हालात पर चस्पा है और यहाँ है कि हमने सरकारी जमीनों पे कितना कब्जा किया, हमने ताकतवर होते हुए कमजोरों की जमीनें कितने अपनी जागीरों में शामिल कर ली। ये देखो ना, अल्लाह ने कुरान मजीद में दुआएं भी सिखाई हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमें दुनिया की भलाई अता फरमा, या अल्लाह हमें आखिरत की भलाई अता फरमा, या अल्लाह हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। ये दुनिया की भलाई क्या है? दुनिया की भलाई यही है कि हम लोगों के हकूक का, हकूकुल इबाद का ख्याल करें और तौबा का एक रास्ता भी बताया है, लेकिन तौबा का क्राइटेरिया भी फिर मुकर्रर है। तौबा कैसे आप करेंगे और कबूल फिर जिस तरह बताया गया कि तौबा करने के लिए जिसका आपको गसब किया है उसको उसका हक वापस देंगे तो तौबा होगी ना जी। दो हिस्से हैं ना, एक अल्लाह के हकूक है, वो जाहिर है जिसका जो हक होता है वो मालिक होता है। जो अल्लाह के हकूक है वो अल्लाह माफ करना चाहे तो माफ कर सकते हैं, बाख्तियार है, मालिक है, खालिक है, सब कुछ है। एक हकूक बंदों के बंदों पर है। बंदों के बंदे पर क्या हकूक है कि उसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज है। बिल्कुल बंदों के बंदे पर हकूक यह है कि वो लेन देन में वो मामलात के खड़े हों, वो किसी की हक तलफी ना करें, दूसरों के लिए कुशादगी पैदा करें, आसानियां पैदा करें, राहतें पैदा करें। हमारा जो तर्ज अमल है वो तो रुकावटें और तकालीफ और रास्ते में कांटे बिछाने वाला हो और हमें उम्मीद बांध रखे हो कि हम अल्लाह के बड़े खुश नसीब बंदे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसके बंदों को पर जुल्म मत भाओ। बिल्कुल। और हम जुल्म का जुल्म किए जा रहे हैं, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, निजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जाली मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, चीजों में मिलावट कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऊपर जो खराब माल रखा हुआ है, नीचे नुक्स वाला माल रखा हुआ है और हुक्म यह है कि भी नुक्स वाले माल का नुक्स बताकर लोगों को फरोख्त करना है और हम छुपा के करते हैं। ठीक है। अब एक एक चीज जो है वो वाज़ेह फरमा दी गई है। बदकिस्मती ये है कि हम ये किताबों में, तकरीरों में पढ़ते और सुनते जरूर है, मगर अमल की दुनिया से हम खाली हैं। जब अमल की दुनिया से हम खाली हैं तो अल्लाह ने भी अपनी रहमतें जो है वो फिर उनका भी रुख जो है वो किसी और तरफ है। बिल्कुल मलिक साहब, हमें जो है ना, मैं अपने सुनने वालों से भी ये गुजारिश करूंगा कि दिलों से नफरतें और जो दूरियां हैं उसे बुलाकर जो है ना नजदीकियां पैदा करने के तरीके इख्तियार करें ताकि हमारा मुआशरा बेहतरी की तरफ चल सके, हमारा इर्द गिर्द का माहौल भी बेहतर हो सके। मैं यहाँ बताते चलूं कि लिया टीवी HD का ये प्रोग्राम सलाम सुबह में हम हाजिर हैं और आपकी खिदमत में आज के इस प्रोग्राम में जो इब्तदाइया होता है हमारा, वो अल्लाह का पाक कलाम से और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि आज सोमवार का दिन है और 25 ज़िलक़द 1445 हिजरी है, 3 जून और 2024 है, 21 जेठ है और 2081 बकरमी साल है। तो ये आज की डेट थी तो हमारे आज के दिन के वो आपको बता दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के इस जमीन पर अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए, हलाल रिज़्क़ की तलाश के लिए फैल चुके होंगे और अपना मामूलात जिंदगी का आगाज कर दिया होगा आपने। तो चलते हैं अपने इस प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ
मलिक साहब, आज जो मुझे जो सबसे हिला देने वाली जो आज की हदीस मुबारक की रोशनी में जो खबर है, वो राजनपुर से अराजी का तनाजा 4 अफराद की जान ले गया, 3 शदीद जख्मी हो गए। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है अब्दुल फीदी साहब। एक आदमी की नाहक जान लेना गोया कि पूरी इंसानियत की जान लेना है। यहाँ 4 आदमी, अब ये 4 आदमी कौन है? ये सिर्फ 4 आदमी कत्ल नहीं हुए, इनके पीछे पीछे खानदान है, इनकी अहलिया होगी, इनके बच्चे होंगे, इनके वालिदैन होंगे। बिल्कुल। एक आदमी तो कत्ल नहीं होता ना, पूरा खानदान के कत्ल से पूरा खानदान कत्ल हो पूरा खानदान कत्ल हो जाता है। और वो जमीन जो है वो वहीं की वही पड़ी है। हाँ जी, वो मलकियत नहीं थी, वो मलकियत तो अल्लाह की है, अल्लाह की मलकियत है, वो अल्लाह की मलकियत है, आर्जी मलकियत है। अल्लाह ने अपने बंदों को दिया है कि जी आप कुछ अरसे के लिए इस पे अपनी रोजी कर लो और कुछ अरसे के लिए निगरानी सपोर्ट की है, और इंसान जो है मेरी है, ये मेरी है, ये तेरी है। इसी चक्कर में ऐसा पड़ा कि उसके बाद फिर भूल गया, और भूलने का नतीजा ये हुआ कि लड़ाई झगड़े हो गए, और लड़ाई झगड़ों के नतीजे में कत्ल वारत हो गया, और कत्ल वारत के नतीजे में फिर ऐसा अफसोसनाक वाक़यात हुए कि वो उनका जो सदमा है वो सारी जिंदगी। अच्छा, ये कोई एक शहर का वाक़या नहीं है, ये जगह जगह के ऐसे हर जगह के वाक़यात हैं। हर गलैया में आपको याद है कि एक ही घर के 8 अफराद जो है वो कत्ल हुए इसी जमीन के, ठीक है ना। माँ, बेटा, पूरा का पूरा 6 बहनें, हाँ जी, ठीक है, एक ही खानदान, एक ही घर के, ठीक है। तो ये एक वाक़या, ये पिछले दिनों भी दोबारा में कत्ल हुआ है। ये देखिए, ये जानदार जमीन के जो मामलात हैं, ये तो अज़ल से चले आ रहे हैं ना जी। अब दरअसल इस इंसान को हमें समझने की जरूरत है कि ये जो कुछ भी हमारे स्पुर्द किया गया है, ये एक आजमाइश है। इस आजमाइश से हम उस वक्त फारिग हो सकते हैं कि जब हम ये शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा फजल करम है, मैं इस काबिल नहीं था। अपने से नीचे की तरफ देखें, जिनके पास नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं है, वो अगर नीचे की तरफ देखेगा तो यकीनी तौर पे फिर वो शुक्र अदा करेगा। अगर वो ऊपर की तरफ देखेगा तो फिर कहेगा कि जनाब ये भी मेरा हक है, ये भी मेरा हक है, ये भी मेरा हक है। हक हो या न हो, उसका क्लेम बनता जाएगा। जब हक क्लेम बनाएगा तो फिर उसके वसूल के लिए फिर वो जायज नाजायज की तमीज किए बगैर फिर उसमें कोशिश करेगा, और उस कोशिश के नतीजे में फिर अफसोसनाक वाक़यात भी जन्म लेते हैं। इसमें मैं आपसे एक और बात जो अपने तजर्बे की इल्म की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूँ, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का किरदार है। अब इस वाक़े में अभी पूरी तरह तफसीलात तो सामने नहीं आई, मगर इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रोल बड़ा अहम है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जानबूझ कर होती हैं, सामून होती है, वो फिर फरीकैन के दरमियान तनाज़ात का सबब बनती है। अब मामूली से फायदे के लिए हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं जो फसाद और फितने का सबब बनती है, और ये फितना फिर जब सदियों और नस्लों को खा जाता है तो वो जो फरमाया गया कि ये सदका जारिया है अच्छे अमाल, और इसी तरह फिर बुरे अमाल का भी फिर जवाबदेही आपकी खातिर में हाय होगी कि बुरे अमाल अगर कोई और आपकी वजह से कर रहा है तो फिर उसका फिर अजाब, और उसके लिए फिर अल्लाह ताला की तरफ से बासपुस के लिए उन तमाम लोगों को तैयार रहना चाहिए जो ये सारे मामला कर रहे होते हैं अपने मामूली फायदे के लिए। भाई साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अस्पतालों के मामलात, अस्पतालों में मेडिकल स्टोर पर इंसुलिन रैब, मरीजों के जान के लाले पड़ गए। दूसरी खबर में जो है वो है कि गर्म मौसम, पंजाब में खसरे के केसेस में इजाफा। और तीसरी जो खबर है वो लइये में आज हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहबान की हड़ताल भी है। ये देखिए, ये जो खसरे का जो मामला है ये तो पूरे पंजाब में एक अलर्ट जारी की हुई है। अब इस अलर्ट के नतीजे में हमारे यहाँ जो खसरे से बचने के इंतजाम है वो अभी उस लेवल के नहीं है। कोशिश तो हो रही है मगर उस लेवल के नहीं है। देखे ना, खसरे के लाहौर में 29, शेखुपुरा में 38, फैसलाबाद 34, गुजरावाले में 25, बहावलपुर में 24, मुल्तान में 15, रावलपिंडी में 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें आपको पता है अब्दुल फरीदी साहब के खसरे का जो शिकार होता है वो कम से बच्चा होता है, जो अपना दुख जो है, अपना मसला, अपना दर्द बयान नहीं कर सकता। वो जब इसका शिकार हो जाता है तो फिर उसके बाद खसरे से बचाव के लिए अगर उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया
तो फिर वो नाकाबिल तलाफी नुकसान की तरफ चला जाता है और उसमें उसकी मौत वक्त हो जाती है। आज सुबह मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब की जिला लिया में खसरे की क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने बताया था कि इस वक्त भी चिल्ड्रन वार्ड में 8 से 10 बच्चे जो हैं वो जेर इलाज है, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे, जिनको डॉक्टर जो है वो दाखिल नहीं कर रहे। और फिर और उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी ये जो खसरा होता है, इस खसरे का जो हमला किसी कम से कम बच्चे पे हो जाए और उसका बर वक्त हिफाजती इंतजाम ना किया जाए तो उसका ज़हनी तौर पर मफलूज होना भी उसमें शामिल है। गोया कि ये मामूली मर्ज नहीं है, इस मर्ज के इंतहाई मोहलक असरात होते हैं जो जिंदगी भर आपके बच्चे, आपके फूल से जो आपके गुलशन का जो जबरदस्त एक फूल है, तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, और उसकी जो जिंदगी है उसे नाकाबिल तलाक नुकसान पहुंचा सकता है और फिर वालिदैन को उसे सारी जिंदगी फिर भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को एहतियाती तदाबीर के साथ उनके साथ ट्रीट करें। और खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे में खसरा जैसे मोहलिक बीमारी के कोई असरात अलामतें कोई शो हो रही है तो फौरी तौर पर डॉक्टर साहब से जो है रजू करें और डॉक्टर की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। बिल्कुल भाई साहब, और खबर है तो बाकी वो जो आप इंसुलिन से हमारे थे, इंसुलिन हमारे यहाँ चूंकि प्लानिंग नहीं है ना, पहले अस्पतालों से इंसुलिन जो है वो फराहम की जाती थी, अब उसमें कट लग गया। अब जहाँ 3000 मरीज हैं इंसुलिन, जहाँ जिस अस्पताल से 3000 मरीज इंसुलिन ले रहे हैं, अब वहाँ जो सप्लाई आ रही है वो 300 आ रही है। अब 300 वैक्सीन के अगेंस्ट 3000 मरीज किस तरह वो बैलेंस होंगे। अब नतीजा ये हुआ कि ये इंसुलिन महंगी आइटम है, महंगाई ने हर घर का जो है कचूना निकाला हुआ है, ऊपर से अब इंसुलिन पे जो पेशेंट शुगर पेशेंट है वो मेडिसिन वो टेबलेट से तो ठीक नहीं हो सकता, नहीं होता। हाँ, उसके लिए लाजिम है वो इंसुलिन। अब मैं जाती तौर पे ये बात जानता हूँ कि इंसुलिन वाले पेशेंट है वो सोचते हैं कि ये अपने वालिदा के लिए इंसुलिन खरीदी जाए या बच्चों के लिए आटा खरीदा जाए। अब ये एक ऐसी कशमकश है जो इंसान को मजीद बेचैनी का शिकार बना रही है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अस्पतालों में इंसुलिन और मेडिसिन जो है वो वाफिर मिकदार में फराहम करे। ये अस्पतालों की जो रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, इससे वो फायदा हासिल नहीं हो सकता जो हमें नहीं चाहिए, मेडिसिन चाहिए उसे, बिल्कुल मेडिसिन चाहिए, इस पे कोई कंप्रोमाइज। हमारी वजीर आला पंजाब साहिबा जो है मरियम नवाज साहिबा को भी सोचना चाहिए, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ को भी सोचना चाहिए और हमारे जो मनसूबा साज है उनको सोचना चाहिए। भी दीवारों की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज भी तो है, रिवैम्पिंग के नाम पर अच्छी खासी बेहतरीन फर्श और बेहतरीन दीवारों को उखाड़ दिया जाता है। अब्दुल फैदी साहब, आप जानते हैं कि रोजा जो है वो क्यों फर्ज किया गया? ताकि क्या कहा गया कि रोजा तुम पर फर्ज किया गया है, उस किस तरह फर्ज किया गया है? उसी तरह फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले कौमों पर फर्ज किया गया। अब कौमों पर फर्ज से क्या मुराद है कि कौम का ये वो फर्ज है जो किसी खास तबके के लिए नहीं है, हर किसी के लिए, खास आम के लिए है। जब एक रोजेदार को अपनी भूख का एहसास होता है ना, तो फिर उसे गरीब की भूख का भी एहसास होता है। अब हमारे जो ऊपर बैठने वाले लोग हैं उनको हमारे गरीब का एहसास नहीं है। उन्हें तो इंसुलिन भी मिल जाती है, उन्हें खुराक भी मिल जाती है, उन्हें सवारी भी मिल जाती है, उनके सरकार के खर्चे सरकार, ठीक है। उससे फिर गरीब आदमी और कम तनख्वाहदार बंदे की मसाइल मुश्किलात का अंदाजा नहीं हो सकता। जब नहीं होता तो फिर वो दवाई की बजाय रिवेम्पिंग पे तवज्जो देते हैं। कौम के लिए मेडिसिन है, इंसुलिन है, और वो दीवारों को उखाड़ पिछाड़ उनकी जरूरत है। अब ये जो गैप आ रहा है, ये गैप पब्लिक में तफरीक मजीद गहरी कर रहा है, इसको कम करने की जरूरत है। तो यहाँ हम अपने इस प्रोग्राम के तवज्जो से अपने अरबाब इख्तियार से सिर्फ यही गुजारिश करेंगे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये गुजारिश करेंगे कि आप प्रोजेक्ट चलाएं अपने अपने अपने, लेकिन लोगों की सहूलियात देने के बाद चलाएं। लोगों को इन अस्पतालों की रिवैम्पिंग नहीं चाहिए, लोगों को वहां अद्वियात की शक्ल में आपकी फैसिलिटेशन चाहिए। हुकूमत का काम है कि बेसिक बुनियादी जरूरियात जो है वो शहरियों के पूरे करें। बुनियादी जरूरियात में अहम तरीन आजकल जो बुनियादी जरूरत है वो अद्वियात है। हर बंदा टेंशन का शिकार है, बीमारी
बीमारियां गालिब हो रही है हर किसी के ऊपर, तो हर घर में बीमार मौजूद है, हर घर में उनकी जो है ना बीमारियों के अजाला के लिए आप जो है ना वो बेहतर सहूलियात मुहैया करें और अद्वियात मुहैया अब साहब आप मैं जाती तौर पे एक बात है जो भी से मुतल्लिक बात है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हार्ट पेशेंट हैं और बाईपास आपने करा रखा है, तो आपको एक महीने में मेडिसिन जो आप यूज करते हैं उस पर कितने खर्चात आते हैं? वैसे मेरी मेडिसिन में जो माहाना खर्च आते हैं वो 3000 आते हैं जी। 3000 वो तो दिन ब दिन हर महीने जो है ना उसमें इजाफा हो जाता है अद्वियात की कीमतों में। अच्छा, जब पिछले महीने लेते हैं तो जब अगले महीने लेने के लिए मैं जाता हूँ मेडिकल स्टोर पर, तो मैं उससे पूछता हूँ, उसने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, आप रैक पे चले जाए, वहां रैक पे आपको रोजाना की बुनियाद पे अपग्रेड रेट वाली जो है ना मेडिसिन मिलेगी, रोजाना की बुनियाद पे। रोजाना जो है ना आप माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह साहिब हैसियत है, जो गरीब आदमी है उसके लिए देखना वो और जो सफेद पोश बंदा है उसके लिए तो जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आज हमारे DHQ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मैं वही अर्ज करना चाह रहा था, वो हड़ताल पे चले गए, वो हड़ताल पे उसका पस मंजर ये है कि डॉक्टर उमर आबिद साहब जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिस DHQ लिया के, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि वो CEO हेल्थ ऑफिस में गए और वहां उनके साथ एक बदतमीजी हुई और उस बदतमीजी पर मबनी दरखास्त पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और उस पे डॉक्टर साहबान ने, डॉक्टर उमर आबिद साहब और उनके साथियों ने इत्मीनान कर दिया और डिप्टी कमिश्नर साहब से डॉक्टर साहबान मिले और उन्होंने ADCR साहब की सरबराही में इसी लिया पर मुस्तद एक उसको मुस्तरद कर दिया गया था डॉक्टर की सरबराही में। हाँ जी, डॉक्टर साहबान ने उस कमेटी को मुस्तरद कर दिया था। अब ADCR साहब ने की सरबराही में कमेटी बनी, 2 रुकनी कमेटी जिसमें AC लिया भी बतौर मेंबर शरीक थे। उसके बाद उस कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट में ताखीर की है, वो अभी तक मेरे हतमी तौर पर नोटिस में नहीं है कि रिपोर्ट फाइनल हुई है, जारी हुई है या नहीं हुई। तो डॉक्टर साहबान ने उस रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट को जारी न करने पर एहतजाज का आज ऐलान कर रखा है और लिया के 80 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो आज हड़ताल पे होंगे। डॉक्टर इकबाल खिरानी साहब स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये देखो ना कितने दुख की बात है कि हड़ताल के अलावा उनके पास रास्ता नहीं है। तो इंतजामिया को ये इस नौबत तक नहीं आना चाहिए था कि लोग डॉक्टर साहबान भी हड़ताल करते और आज जो मरीज सफर करेंगे, मरीज अटेंडेंट नहीं होंगे, तो उसका नुकसान किस तरह होगा, किसको होगा? गरीब मरीज को होगा जो इतवार का दिन किस तरह उसने गिन गिन के उसने गुजारा कि मंडे को अस्पताल जाएंगे, बड़े डॉक्टर को अपने चेकअप कराएंगे, दवाई लेंगे, कुछ दवाई अस्पताल से मिल जाएगी और कुछ दवाई वो मार्केट से लाएंगे, और कितने लोग ऐसे होंगे जो किराया भी वो उधार लेकर आए होंगे। अब ये जो मरीजों के साथ जब पिछली दफा हड़ताल हुई थी तो हमने अस्पताल का विजिट किया था, तो वहां हमने लोगों से बातें भी की थी। किसी ने कहा वो अड्डा 217 से आया हुआ है TDS से, कोई कहां से आया, खवातीन ऐसी भी थी जो कहती थी कि हमारे पास तो यही पैसे थे जो हम यहाँ तक आए हैं। हाँ जी, और कितना वो रो रही थी। हाँ जी, और एक बुजुर्ग जो है उसको पेशाब की नाली लगी हुई थी, उसको कोई देखने वाला पर लेकर फिर रहे थे लोग। ये देखो ना, ये कितना अफसोसनाक मुनाज़र है। अब कोई बंदा इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा कि डॉक्टर का ये जो मुतालबा है, देखो उनका इंक्वायरी रिपोर्ट जारी होना बिल्कुल जायज मुतालबा है। अब उसके इजरा में जो ताखीरी हरबे हैं उसकी क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब जिम्मेदार है या क्लर्क साहब जिम्मेदार है या कोई और सी हेल्थ जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है उसको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है मलिक साहब। हमारे जो जितने भी एसोसिएशन है, चाहे वो पैरामेडिक्स है, YDA है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और इसी तरह दीगर महकमों भी ऐसी एसोसिएशन है, ये तमाम के तमाम वो एसोसिएशन ये असल में लोगों की भलाई के साथ मुंसलिक होना चाहिए इन एसोसिएशन को, ना कि लोगों के लिए जो है वो हर्डल पैदा करे। ये एसोसिएशन दो ये एसोसिएशन अपने निगरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने निगरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह की जो मखलूक है, बेवसाइल मखलूक है,
اس کے لیے آپ مشکلات کر رہے ہیں۔ سرکاری ہسپتال میں تو وہی لوگ آتے ہیں نا جو جن کے پاس پیسے جانے کے پیسے نہیں ہوتے، جن کے پرائیویٹ کلینک پر جانے کے فیسیں نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، ادویات خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو ان پر پاس ہے نا ڈاکٹر حضرات۔ جی ایسے بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھی لکھی بات کرنی چاہیے۔ پڑھی لکھی بات یہ ہے کہ بھی آپ گفت و شنید سے اپنے مسائل کو آپ نوٹس دیتے، آپ نوٹس دیتے، آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا جو احتجاج ہے اسے ریکارڈ کرانا ہے نا۔ آپ 1 گھنٹے کی ہڑتال پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ احتجاج ریکارڈ کرائے، ہاں جی ہاں جی، انیشلی ریکارڈ کرائے، یہ نہیں آپ لوگوں کو بیمار لوگوں کو پھر زیادہ بیماری میں۔ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، میں آپ کے ساتھ ہم آواز۔ تو چلتے ہیں ملک صاحب اگلی خبر کی طرف۔ یہ آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان میں وہ جو ہے وہ پھڈا شروع ہو گیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا جون کے لیے ڈالر ریٹ 300 روپے ہونے کا اندازہ تھا، لیکن ڈالر 278.10 پر ٹریڈ کر رہے ہیں۔ بجٹ کے لیے ڈالر کی قدر کے تعین پر آئی ایم ایف حکومت میں اختلافات ہو گئے ہیں۔ اختلافات وقتی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ لو اسٹوری ہماری چلتی رہے گی۔ وہ ڈوب اور کبھی تو کہا ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ لو اسٹوری چلتی رہے گی، کیونکہ ہم نے اپنے رویے بدلنے نہیں ہے، تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ اپنے رویے تبدیل کرے۔ صحیح ہے۔ تو اگلی خبر ہے جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی، فیز 1 کے لیے 10 ماہ کا وقت مقرر کر دیا لاہور کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، صوبائی دارالحکومت میں ہونا چاہیے، مگر جو مضافات کے علاقے ہیں ان کے لیے بھی اچھا، یہ فراہمی نکاسی آپ کا نظام ہوگا، اس میں رابطہ سڑکوں گلیوں کی پختہ تعمیر، اسٹریٹ لائٹ کی تنصیب اور پارک بہاری پروجیکٹ میں شامل ہے۔ سر جو یہ تمام چیزیں جنوبی پنجاب میں کچھ بنانا چاہتے ہیں بنائیں، مگر لیا کا بھی حق ہے، بکھر کا بھی حق ہے، مظفر گنج کا بھی حق ہے، یہاں کا بھی حق ہے، سب کا حق ہے، یہاں بھی فوکس ہونا چاہیے۔ صحیح کہا، لاہور کا بھی حق زیادہ ہے کیونکہ وہ بڑا بھائی ہے اور صوبائی دارالحکومت ہے، اور یہ چھوٹے بھائی جو ہیں اور جو ستیلے بھائی ہیں جو کزن ہے لیا بکھر، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا۔ تو اس میں ہماری پارلیمانی کلاس کیا کر رہی ہے؟ پارلیمانی کلاس موج کر رہی ہے، اسمبلی میں جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور لیتے ہیں، زبردست ہے، بس زبردست، اسی لیے ہم نے بھیجا تھا ان کو۔ تو جو ان کے جمہوری حق ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ جمہوری حق ہے۔ عوام جمہور جو ہے جمہور چاہے مسائل کا شکار رہے۔ وہ تو عبدالرحمان فریدی صاحب، مجھے پھر آپ سے عرض کرنا پڑے گا کہ باردانہ کے مسئلے پر لیا کے عوامی نمائندے آپ کو کہاں کھڑے نظر آئے؟ کہیں نظر نہیں آئے۔ لیا نمائندگان نہ سابقہ نمائندگان، لیا ضلع میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے باردانے کے مسئلے پہ کسانوں کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ بھائی صاحب، وہ باردانے کے مسئلے پر کسان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے اپنے اپنے حصے کے باردانہ وصول کر لیا اور حصے سے زائد وصول کر لیا۔ اب عوام کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ وہ جن کے لیے نعرے مارتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں نا، اس میں ہاتھ صرف حکومت کے لوگوں نے نہیں رنگا کہ یہ حکومتی اس میں ہے، چاہے وہ موجودہ ایم این اے ہے یا نہیں ہے، لیا میں اپوزیشن والوں نے بھی ہاتھ رنگے ہیں۔ دیکھیں لیا میں جو حکومت ہے وہ تو لیا سے کی جو اپوزیشن کے حلقے ہیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی وہ حکومتی حلقہ ہے، اور جو سنی اتحاد کونسل ہے یعنی کہ پی ٹی آئی وہ اپوزیشن میں، لیکن ہاتھ دونوں نے رنگے ہیں اور ٹکا کے رنگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عوام کے پاس تو کوئی سنوائی کہیں سے بھی نہیں، اس کے آنسو جو ہے کسی نے نہیں پہنچے، وہ چھوٹی موٹی آواز جو ہے کسان بورڈ اور جماعت اسلامی نے کی ہے، مگر اس سے نکار کھانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے؟ وہ کچھ نہیں سنتا۔ اور خبر کی طرف چلتے ہیں، پنجاب پاور شیئرنگ فارمولا چلتے ہیں، پنجاب پاور شیئرنگ فارمولا پیپل پارٹی نون لیگ میں ڈیڈ لاک برقرار، یہ گڈا گڈی کا کھیل یہ بھی لو اسٹوری ہے، یہ بھی لو اسٹوری ہے۔ یہ دیکھیں نا، مزے حکومت میں بھی ہے اور ڈیڈ لاک بھی ہے، زبردست بھائی، یہ بڑے زبردست فارمولے ہیں، بھی پریزیڈنٹ آپ کا، گورنر آپ کا اور ڈیڈ لاک بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہے۔ بھی وہ کیسے شامل نہیں ہے بھائی وہ جو کریڈٹ ڈسکریڈٹ ہے اس میں حصے دار بنے ہوئے تو کس طرح بھی بن سکتے ہیں؟
इसी तरह मलिक साहब अगली खबर की तरफ चलते हैं। बजट 2024 नॉन फाइनेंस के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। पहले घेरे तंग नहीं है आवाम के टैक्स गिर्द, तो देना चाहिए। नहीं टैक्स तो दे, लेकिन आवाम के गिर्द घेरे तंग है नहीं। अवाम तो घड़ी की मच्छी है, वो जितना मर्जी उसको काट लिया जाए, उसका क्या मसला है। बिना डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकते, या लोग देने के लिए तैयार नहीं आते डायरेक्ट। टैक्स लेने का तो हमारी हुकूमत का अंदाज ये है कि बिजली बिलों पर टैक्स है, टीवी टैक्स। जी, अच्छा, वो जब बिल किसी मस्जिद का भी आ जाता है ना, उस पर भी टीवी टैक्स लगा होता है। मोबाइल फोन का बैलेंस है, उस पर टैक्स है, माचिस की डिब्बे पर टैक्स है, घी चीनी पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। मेडिसिन जो महंगी हुई है उन पे टैक्स है, आप जूते लेते हैं उस पे टैक्स है, आप गोश्त लेते हैं उस पे टैक्स है, आप सेब और केले लेते हैं आप उस पे, हर चीज पे टैक्स ही टैक्स है। रोजाना जान की खबर है, वजीर दाखिला का ओवरसीज पाकिस्तानियों को पासपोर्ट इजरा में ताखीर का नोटिस 7 रोज में जारी करने का हुक्म। ये बड़ी अच्छी ये खबर है। कितने दिनों से ये मामला लटका हुआ था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग जो है वो मारे मारे फिरते हैं। कई जो पाकिस्तानी है उन्होंने डबल ट्रिपल फीसेस भी अदा की हुई है, मगर पासपोर्ट नहीं मिल जाता। तो अब उम्मीद है वो कागज भी आ गया होगा जिसको पासपोर्ट बनना है, और बाकी जो मराहल है वो भी तय हो गए होंगे, तो ये मसला अब हल हो जाएगा, उम्मीद काफी है। और अगली खबर है गंदम स्कैंडल, साबिक फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीमुल हसन को चार्जशीट कर दिया। चार्जशीट में नाहली मिसकंडक्ट और करप्ट तर्ज अमल के इल्जाम आए थे। 14 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कोई बात नहीं, तो 15 रोज में भी देने तो हम खुश आमदेद कहेंगे, 28 रोज में भी लाने तो हमें वो क्या होगा, कुछ होगा नहीं, क्या होगा, यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अच्छा, यहाँ मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि 15 जून तक मौसम में शिद्दत रहने का, गर्मी की शिद्दत रहने का इम्कान है, इसलिए एहतियात जरूरी है मलिक साहब। जी बिल्कुल जरूरी है, हीट में बहुत शिद्दत के साथ अपनी और यहाँ हमारे क्रिकेटर्स के लिए सऊदी अरब ने एक ऐलान कर दिया है, वो ये किया है, सऊदीया का वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अगले बरस हज पर शाही मेहमान बनाने का ऐलान। देखिए, सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो किसी से ढके छुपे नहीं है, कोहो बालियत से बुलंद है। और ये सऊदीया ने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया और बड़ा खैर का उन्होंने मैसेज दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अगर फातेह रहती है तो फिर वो सऊदी अरब की शाही मेहमान होगी। लेकिन पाकिस्तान का खिलाड़ी जो है वो सऊदी अरब, दूसरा मुल्क जो है वो उसको ओन कर रहा है, ठीक है ना। इससे हमारे मुल्कों के दरमियान जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुक है, उसकी भी मजबूत अलामत है, दलील है। और दूसरा ये है कि ये सऊदी हुकूमत का क्रिकेट सरपरस्ती के हवाले से उनका ये पॉजिटिव रोल है जिसको हम वेलकम करते हैं। अब हुकूमत ने भी ऐलान कर रखा है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे तो हम उनको इनामात की बारिश कर देंगे। अब खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी है कि वो पूरी कुव्वत से अपने खेल का, फन का, सलाहियतों का मुजाहरा करे, ताकि पाकिस्तान का जो झंडा है वो अमेरिका में क्रिकेट के मैदान में जो है सरबुलंद हो। एक और खबर है मलिक साहब की, हमारी वजीर आला पंजाब ने किसानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए कल किसान कार्ड के इजरा का आगाज कर रही है। बड़ी अच्छी बात है जी, हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड, फलां कार्ड, सारे कार्ड, वतन कार्ड, ये सारे कार्ड होने चाहिए। ये वक्त की जरूरत है, कार्ड ही कार्ड हो, कार्ड ही कार्ड हो। और कार्ड की शक्ल में जो फ्रॉड होते हैं, जो धोखे होते हैं लोगों से, इसमें ये तो फिर जिस तरह सेहत कार्ड का जो स्कैंडल ये क्या ना, आपको और मुझे मालूम है कि एक रात में 32 ऑपरेशन हॉस्पिटल में। अब्दुल साहब, इसमें मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो कार्ड है, अब इस कार्ड के जरिए जो सोसाइटी को यकीन इसलिए भी आता ना कि पाकिस्तानियों की जो सारी रियासती मशीनरी की जो उनको जो तशख़्ख़ुस है, उनके बारे में जो राय है, वर्किंग स्टाइल है, उस पर पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है उसे एतमाद नहीं है। जब एतमाद नहीं है तो अच्छे काम जो है वो भी फिर वज़ीर हासिल नहीं कर पाते। लिहाजा हमें करप्शन फ्री मुआशरे के काम के लिए बढ़ना होगा। उसके लिए सोसाइटी के तमाम तबकात को अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारा मुल्क जो है वो अक़लियतों के हकूक और उनके तमाम जो है फैसिलिटेशन वो हमारे आईन पाकिस्तान में मौजूद है। उसमें एक बेहतरीन जो मुझे खबर मिली है आज की अखबार की, वो डॉक्टर हेलन है, पाकिस्तान की पहली अक़लियती खातून ब्रिगेडियर, कौमी नुमाइंदगी की बेहतरीन मिसाल। अब्दुल महफूज साहब, पाकिस्तानी अक़लियतों ने पाकिस्तान की तामीर तरक्की में हमेशा
शानदार किरदार अदा किया है। अदलिया का मैदान हो, ब्यूरोक्रेसी का मैदान हो, अब फौज का मैदान है, तो मेडिकल कोर का मैदान है, तो जो अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन हजरात हैं, उनकी सलाहियतें किसी से ढंगी छुपी नहीं है। उन्होंने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है और हम इस मौके पे डॉक्टर हेलन उनको मुबारकबाद देते हैं, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं उनकी फैमिली को और उन्हें, और सब पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंची हुई है वो। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा शानदार उनकी एक स्टेप्स है जो उन्होंने अपने नाम के साथ मंसूब किया है, उसके हम उन्हें ये हमारी पाक फौज का भी एक जो है ना साफ इमेज है, मस्बत इमेज है कि एक अकलियती खातून डॉक्टर जो है वो ब्रिगेडियर, जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसी एक खातून जनरल भी मेरे ख्याल में एक हुआ करती थी, जी मेजर जनरल। जी बिल्कुल ऐसा है, बहर जी एक बहुत अच्छा है और इस पर हम मुबारकबाद देते हैं एक मरतबा है। तो ये था आज का सलाम सुबह का प्रोग्राम। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है तो हमारा नैया टीवी एचडी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, ताकि आपके कमेंट्स की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम्स को अपने इस नैया टीवी एचडी के मैनेजमेंट बेहतर अंदाज में आगे चलाने का बंदोबस्त करेगी, ताकि आप तक हमारी नशरियात जो है वो बर वक्त और बेहतरीन अंदाज में आप तक पहुंच सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे होंगे, हमारे नैया टीवी एचडी फेसबुक पेज और यूट्यूब को भी पसंद कर रहे होंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इन फॉलो भी करेंगे, हमारे फेसबुक को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए इसे शेयर भी करेंगे। आज का प्रोग्राम इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह करीम आप पर, हम सब पर अपनी इनायत का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफा फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको खुशो खुर्म और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ने